सो हाय माय डियर व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं हीना गोयल हमारी एनरोल एजेंट की स्टूडेंट है जो कि आज अपने एनरोल एजेंट की जर्नी के बारे में हमसे शेयर करेगी। एंड शी इज फ्रॉम हिसार। सो फर्स्टली हीना, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग योर जर्नी पार्ट्स बैक एंड बैक। Thank you, ma'am. Thank you so much. तो हीना, आई वांटेड टू नो वन थिंग पर्टिकुलरली कि एक ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट। बिकॉज जो भी सर के यूट्यूब चैनल पे या जो भी सर बताते हैं कि व्हाट आर द आउटकम्स व्हेन यू पास एनरोल्ड एजेंट, और जो भी मैं जर्नीज वो लोगों की देखती हूँ या लिंक्डइन पे आई वेंट थ्रू प्रोफाइल्स फॉर ऑफ द एनरोल्ड एजेंट्स. So those are the things that kept me motivated that yes, I have to clear the exam anyhow. Okay, so Hina, what strategy you use to clear your exams, like in one go? Firstly, the confidence came from Sir's words because Sir had full confidence when I did not have a confidence that I will pass the exam. But Sir was like, "Ki, you will pass, don't worry." And the study strategy which I followed is first I completed all the lectures. First, I completed the live lectures, the new ones that Sir took, and then I completed the old lectures as well and all the MCQs. And then I did thorough reading of the book. I read it thrice completely, the chapters, because first reading doesn't give you enough confidence. So when you so I think main key is when you do revision at least twice or thrice, then you get somewhat confidence that yes, now you have grabbed the things. And not just the reading, you have to understand the concept and the process. For example, if you are doing the collection process, so first when you read, you are like, okay, I have read the concept, but still I'm not clear for what was the first step, what was the second step. So when you read it next time, you keep in mind that I have to study it like a process, like step by step. What is the examination process, what is the collection process? That will help you a lot while you will be attempting questions in the examination. Fact. Okay, Hina, here comes like one thing that motivated you the most to start the enroll agent as you are clearing your journey very soon. So I wanted to know कि क्या ऐसी चीज थी जो आपको मोटिवेट करा कि नहीं आपको ये करना है, और क्या ऐसा फैक्टर था कि आपने AKPS चूज किया फॉर योर एनरोल एजेंट जर्नी थ्रू आउट। Actually, truly speaking, I wasn't aware of EA at all. My brother is doing CPA with Shami sir, AKPIS, and he took enrollment in enrolled agent as well. So right now he has passed, he has cleared two exams of CPA and just given third exam. So he came across the enrolled agent course, and he was already enrolled with Shami sir. So he made me aware of this, and then it was because I belong from the commerce background, and I was like, yes, I can do it because I understand these concepts, and I have a background. So and definitely the package and all that we get the results, and it is a top highest credential in US taxation that motivated me to pursue this. And the time taken to achieve this is really short when we compare to other courses. So, yeah. डेफिनेटली। ओके, हीना, अगर मैं आपसे आगे बात करूं, लाइक यू आर परस्यूइंग योर प्रोफेशनल जर्नी, आई वांटेड टू नो कि ऐसी प्रोफेशनल जर्नी परस्यू करने के लिए एक मेंटोर की सपोर्ट की और गाइडेंस की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट यू थिंक ऑन दिस। या डेफिनेटली रिक्वायरमेंट तो होती है बिकॉज आप एक जर्नी शुरू करने जा रहे हो जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है. सो अगर सामने से भी आपको गाइडेंस ना मिले, देन यू आर लाइक स्टैंडिंग, यू विल फील लाइक यार यू आर स्टैंडिंग नो वेयर, एवरीथिंग इज ब्लैंक. बट शमी सर, एक तो जो लेक्चर्स होते हैं शमी सर की, उनका एक्सप्लेनेशन मेथड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है. लाइक आई हैव लिसन टू सम अदर लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, or I tried simple live classes with the others. So I found that those lectures and classes monotonous, like everything goes above head. बट शमी सर जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो एवरीथिंग गोज इनसाइड ब्रेन. सो वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स भी जो होते हैं वो एक बहुत सिंपल तरीके से उसको नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं.
और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट ग्रैब हो जाता है कि हाँ एग्जैक्टली ये है, उसका लॉजिक समझ में आ जाता है। इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू मग अप द थिंग्स, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। एग्जैक्टली दैट्स फैक्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपसे आगे बात करूँ, लाइक वी हम हैव अ क्लासेस वर्चुअली, देन हमारे जो आपके डाउट सेशंस होते हैं वो भी वर्चुअली होते हैं। डू यू थिंक कि आपका एक एक डाउट प्रॉपर तरीके से सॉल्व हुआ है डिस्पाइट इट वाज अ वर्चुअल क्लासेस एंड ऑल? आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिली, हर एक एक डाउट अच्छी तरीके से सॉल्व हुआ? Actually, I did not took so many any doubt sessions. Um, 4 to 5 times I needed some clarifications, and I dropped mail to sir. Sir only replied because that was very minimal. So sir only replied to that. And beyond that, I think maybe I get to use to that in part one or part two. But in part three, I did not ask for any doubts beyond that. दैट्स ट्रू। ओके ही ना, अगर मैं आपसे आगे पूछूं कि जैसे सर है तो सर इज ऑलरेडी अ सीए, सर इज ऑल्सो अ सीपीए, राइट? तो सर अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बताते हैं, खुद के रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करते हैं। डू यू थिंक ये काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए? हाँ हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज आप जब किसी चीज़ को एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हो, तो भले ही एक टाइम होता है कि स्टूडेंट वो एग्जाम्पल वो कॉन्सेप्ट अगर माइंड में नहीं आ रहा, तो वो एग्जाम्पल याद ज़रूर आ जाता है कि अच्छा सर ने ऐसा बताया था, तो वो रिकॉल हो जाती चीज़ें, नहीं नहीं ऐसा था, ऐसा ऐसा होगा इसमें। तो वो तो डेफिनेटली हेल्प करता है। जैसे मैं ना काफी बार स्टूडेंट से बात करती हूँ तो स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि मैम हम ना एग्जाम में यहाँ पे स्टक कर रहे थे, बट देन हमें सर की वो वाला एग्जाम्पल याद आया और वो चीज हमारे लिए इजी हो गई। हैव यू आल्सो फेस समथिंग सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन इन योर प्रोमेटिक सेंटर? एक्चुअली वो जब आप रिपीटेडली लेक्चर सुनते हो, तो वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है चीजें। तो जब आप क्वेश्चन रीड करते हो ना, तो यू आर श्योर कि इसका तो यही होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तो आप श्योर होते हो। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप अटक जाते हो, लाइक आपने फिल्टर आउट कर दिए, दो ऑप्शंस फिल्टर आउट कर दिए, नो दीज आर रॉन्ग। बट जो एन के टू होते हैं ना, कुछ मैं बोलूंगी 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसमें आप फ्लैग करते हो, आप थोड़ा स्टक हो जाते हो कि क्या है क्या है। बट वो ऐसे होते हैं जो हमने शायद पढ़ा हुआ होता ही नहीं है। वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, बट जो पढ़ा हुआ होता है ना कॉन्सेप्ट, उसका इमीडिएटली ही यू नो कि हाँ जो मैंने मार्क किया है वो एग्जैक्टली वो है। क्योंकि आप इतनी बार जब लेक्चर सुनते हो और पढ़ते हो, तो वो आपको अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है कॉन्सेप्ट कि हाँ यू आर 100% कॉन्फिडेंस कि इसका यही आंसर है। ट्रू। बट यू थिंक ही ना कि मॉक टेस्ट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एग्जाम को क्लियर करने के लिए? डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जब आप मॉक टेस्ट देते हो, एक तो उसमें टाइम बाउंड होता है। जैसे एग्जाम आपका टाइम बाउंड होता है, तो वो भी मॉक टेस्ट भी टाइम बाउंड होता है। एंड यू नो कि आप जब एट अ स्ट्रेच बैठ के एमसीक्यूज, तो जब आप सॉल्व करते हो, तो कभी आप 50 कर रहे हो, कभी आप 10 कर रहे हो, 15 कर रहे हो। बट जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो आप एग्जैक्टली उतनी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एंड एट द एंड आपको पता लगता है कि क्या पिक्चर होने वाली है जब रिजल्ट मिलता है। फिर वाइल सॉल्विंग द मॉक, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे आते हैं जो मॉक में भी अलग होते हैं, तो यू गेट टू रीड सम एडिशनल कॉन्सेप्ट्स एज वेल। तो उसके लिए भी मैं बोलूँगी कि बजाय कि आप इधर उधर, क्योंकि कुछ मैंने देखा है चलता है कि कुछ भी स्टडी मटेरियल लोगों को मिलते हैं, तो दे स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। बट बिसाइड्स दैट, I would suggest कि just go to the IRS portal, everything is there. So mock test में भी अगर आपको कुछ additional topic मिलता है, just go to the IRS portal, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे study करो, and you will get the exact answer. तो वो भी help करता है। अगर आप पहले mock test, मैंने तो बहुत लास्ट में किया था attempt, because मेरा ऑफिस भी चल रहा था। बट अगर आप कुछ डेज पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, तो वो एडिशनल कॉन्सेप्ट जो मॉक टेस्ट में सर ने डाले हुए हैं, तो वो भी आप ग्रैब कर पाते हो, एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट कि ना, यस आई फील मोर कॉन्फिडेंट नाउ, देन मे बी यू कैन अटेम्प्ट वन मोर मॉक टेस्ट आफ्टर दैट।
फैक्ट। ये ना मुझे काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम एकेपीएस का मॉक टेस्ट मेन एग्जाम से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हमारे पीछे उसकी ये स्ट्रेटेजी होती है कि हाँ, क्योंकि हम स्टूडेंट को ए1 के लिए प्रिपेयर करें तो ए2 तो वो इजीली क्लियर कर ही लेंगे। हैव यू ऑल्सो फील द सेम टाइप ऑफ सिचुएशंस और समथिंग लाइक दिस? यस एक्चुअली आई वाज मैं बहुत डरी हुई थी बिकॉज मैंने सुना था कि इस बार एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है, बहुत ट्रिकी आ रहा है। तो मैं एंड मोमेंट तक ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इनफैक्ट एग्ज़ाम से पहले वाले दिन मैंने सर से बात भी की थी। तो सर ने बोला कि आप क्यों डर रहे हो, मुझे तो पता है आप ग्रीन मार्कशीट ही शेयर करोगे। बट सर को कॉन्फिडेंस था, मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था। बट यस वहाँ जाके मुझे नहीं लगा कि जितना मैं सुन रही थी कि इतने डिफिकल्ट आ रहे हैं, इतने ट्रिकी आ रहे हैं, उतना नहीं था। जैसे मैंने बताया 5 से 10 क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे, बट उसके अलावा इट वाज नॉट लाइक कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आई फेल्ट लाइक कि हाँ ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है। तो यस इट वाज। ओके। क्योंकि ही ना, अगर मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूं तो मतलब हमारे यहाँ पे एक हिरार्की चलती है। इट्स लाइक कि पहले हम स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं, फिर हम उन्हें मेन करिकुलम पढ़ाते हैं और फिर हम उन्हें रिवीजन लेक्चर्स देते हैं। व्हाट यू थिंक कि ये जो हिरार्की है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए उनका एग्जाम क्लियर करने में और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलने हाँ हाँ, ये मतलब पार्ट 3 में तो बेसिक्स नहीं थे, बट नाउ दैट आई एम स्टडिंग पार्ट 1, तो उसमें सर ने बेसिक लेक्चर्स लिए हैं एंड देन मेन लेक्चर्स चल रहे हैं। एंड पार्ट 3 के सर ने रिवीजन लेक्चर्स लिए थे। डेफिनेटली इट हेल्प्स क्योंकि सर पहले एक बेस बनाते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से या नॉन टैक्सेशन बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनको एक बेस बनाने में, एक होता है ना माइंडसेट सेट करना कि आप एग्जैक्टली किस टाइप की चीजें आप पढ़ने वाले हो। तो उसका बेस जिसका अगर पहले नहीं बना हुआ है तो वो बेस सर बनाते हैं पहले, उसके बाद वो मेन कॉन्सेप्ट पे लेके जाते हैं। तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। एंड इट इज़ नॉट एन एग्जाम वेयर यू विल मग अप द थिंग्स एंड अटेम्प्ट द एग्जाम, बिकॉज इसमें जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे। फैक्ट। ओके ही ना, इन लास्ट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप आपकी तरफ से आपके मेंटोर को कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे तो आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही बोलूंगी सर को, थैंक यू सर वेरी मच। एंड आपने मेरे को इतना पॉजिटिव, मैं जब भी मैंने कांटेक्ट किया है सर को, बात की है, सर ने मेरे को हमेशा मोटिवेट ही किया है। और सर से बात करके मैं रिलैक्स हो जाती थी। सर ने हमेशा कॉन्फिडेंस रखा है मेरे अंदर। और मेरे को अब क्योंकि पार्ट 3 अब क्लियर हो गया है, तब भी सर ने मुझे बोला कि मैंने आपको बोला था आप क्लियर कर लोगे। और अभी भी मेरे को क्लियर करने के बाद अब मुझे हो गया कि हाँ मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 भी क्लियर कर लूंगी। एंड उसमें भी डेफिनेटली आई विल कीप इन टच विद सर एंड आई जस्ट वांट टू थैंक हिम वेरी मच। कि जब भी मैं थोड़ा नर्वस थी या वो थी, मैंने जैसे ही कांटेक्ट करने की कोशिश की, सर वाज देयर। एंड नेक्स्ट डे ही मेरे को सर से शेड्यूल हो गई कॉल। तो दैट मेड मी रिलैक्स्ड वेरी मच कि एवरी टाइम ही वॉज देयर फॉर मी। सो थैंक यू वेरी मच सर। Okay, thank you. Thank you, Hina, for your precious time, and we wish you all the very best for your upcoming future. Thank थैंक you. यू मैम। थैंक यू।